Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, from today we are going to start our chapter 12 Air, Water and Weather. So, what is the name of our chapter? Air, Water and Weather. Right. So, in this chapter we are going to learn about what does air contain. As we all know that air is mixture of various gases, right? So how many gases are there? Oxygen, nitrogen and many. So in this chapter we are going to learn about all these, right? Now our second topic is water. So about water, like source of water, properties of water, forms of water, right? In this chapter we are going to learn about water evaporation and condensation कैसे होता है, what is water cycle. So we will learn in this second topic. Third topic is weather. So what is weather? You guys are know atmosphere, right? Weather is the condition of atmosphere over the short period of time and it may changes anytime, right? तो वेदर कैसे होते हैं? वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, विंडी, ड्राई एंड humid, right? So we are going to learn all these in this third topic, weather, and fourth topic is seasons, right? So we have seasons like monsoon, summer and winter. All these seasons, according to seasons we wear clothes, है ना? हम खाना भी according to seasons खाते हैं. तो we will learn about season in the fourth topic, right? So open page number 118. There is one activity here. You have to see. Air is all around us, but we cannot see it. See, air is all around us. हमारी आजू बाजू बहुत सारी एयर है, राइट? बट वी कैन नॉट सी इट. बट हम उन्हें देख नहीं सकते. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. एयर जब मूव होती है तो वी कैन फील, राइट? हमें पवन का जो झोंका आता है, हवा का जो झोंका आता है, वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट सी इट. नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन below and answer the following questions. This is our picture and we have to answer all these questions, right? Observe the picture and discuss. So first question is, do you think it is very windy? What shows it? See, do you think it is very windy? ये आपको windy लग रहा है. windy का मतलब होता है बहुत ही, मतलब एकदम पवन फूक रही है, राइट? तो डू यू फील, है ना? आप देख सकते हो. यस, दिस इज विंडी, राइट? तो हमें क्या पूछा है? व्हाट शोज इट. आपको विंडी कैसे दिख रहा है? आप क्या देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये विंडी एटमॉस्फेयर है. तो एज यू कैन सी, अम्ब्रेलाज आर ओवरटर्न. सी, यहाँ पे देखो अम्ब्रेला है वो ओवरटर्न हो गई है, उल्टी हो गई है, राइट? ट्रीज आर स्वेइंग. ट्रीज है देखो मुड़ गए हैं पूरे, राइट? देखो कैसे उड़ रहे हैं. एंड बेंडिंग लो, वो क्या हो गए? बेंड हो गए हैं पूरे. तो दैट शोज दैट इट इज वेरी विंडी, राइट? Now see the second question. Do you think that the children are wearing the right clothes for this weather? Yes or no? Yes, children are wearing gumboots and raincoat, and this is and we have to give a reason that why this dress is appropriate for this season. तो क्या पहना है उन लोगों ने? दे आर वेयरिंग गमबूट्स एंड रेन कोट्स, राइट? सो दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर द monsoon season because they do not observe water
They are waterproof. Right? Now see the third question. Name the processes involved in forming रेन. चलो रेन हो रही है तो उसमें कौन सी प्रोसेस होगी. अभी हमने चैप्टर 5 जो कंप्लीट करा था सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, उसमें हमने क्या पढ़ा था. वी लर्न अबाउट इवापरेशन एंड कंडेंसेशन. राइट. तो दीज बोथ प्रोसेसेस जो है वो क्या करती है, इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग रेन. राइट. और बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व फॉर्मिंग रेन, कंडेंसेशन एंड इवापरेशन. राइट. सो दिस इज आवर डिस्कशन. Discuss with your parents, with your friends, and now we'll learn some hard words which you have to write down in your fair notebook. Right. So first of all write down chapter 12, air, water and weather. Write down name and then write down hard words. First word is water vapor. Water vapor, we all know water vapor. What is water vapor? Which is in the air, जिसे हम बाष्प बोलते हैं. right? So water vapor. Second word is oxygen. Oxygen is the gas, right, which we take. जो हम all living things need oxygen, right? So oxygen is a gas. Likewise carbon dioxide, we breathe out carbon dioxide and we breathe in oxygen. Right. Fourth one is dust particles. Dust particles यानी dust जो हवा में होती है. We all know. Then germs. We all know what is germs. Germs यानी कीटाणु. Purposes यानी अलग अलग जो हेतुओं के लिए हम यूज़ करते हैं. Purposes. Right. Water cycle. Now what is water cycle? We will learn briefly in this chapter कि water cycle क्या है. Right. Now open page number 119 in textbook. See what does air contain. यानी जो air है उसमें क्या क्या होता है. air है वो क्या contain करती है. Right. So now see, if you take a glass of very cold water and place it on a table, you will soon notice water drops sticking on the outer side of the glass. Right. This activity we have already done in our online classes. Right. तो हमने online class में क्या करा था. We have taken one glass of water and we place some cubes in it. Right. एंड हमने क्या करा था, उसे 5 मिनट टेबल पे रख दिया था. एंड व्हाट वी हैव नोटिस्ड, वी हैव नोटिस्ड दैट वाटर ड्रॉप्स स्टिकिंग ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास. राइट. ये हुआ था. यस. सो नाउ सी वेयर डू देयर वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम. ये वाटर ड्रॉप्स है वो कहाँ से आए. डू यू नो. यस, वी ऑल नो बिकॉज आई टोल्ड यू दैट water vapor is in the air, and when water vapor जब इसके ठंडी जो कोल्ड ये ठंडी होती है जो आउटर साइड है उसके कांटेक्ट में आती है तो वो क्या होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर. राइट. और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. तो सी यहाँ पे भी लिखा है कि where does these water drops come from. So this water didn't leak through the glass. Right. water है वो ग्लास से लीक नहीं हो रहा है. No, it is not leaking. It came from the air. वो कहाँ से आ रहा है, ये जो water drops है वो कहाँ से आ रहा है. It came from the air. Air contains water in the form of water vapor. Air जो है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है. इट इज़ लाइक वाटर, वो वाटर ही होता है पर वाटर वेपर के रूप में होता है. जब वो ठंडा होता है तब वाटर हो जाता है. राइट. तो एयर ऑल्सो कंटेन्स इम्पोर्टेंट गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
एयर वाटर वेपर तो कंटेन करती है, पर उसके साथ साथ गैसेस भी कंटेन करती है, राइट। तो कौन कौन से गैसेस होते हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सी, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं। एंड एयर में ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। एयर और क्या कंटेन करती है, डस्ट पार्टिकल, यू कैन सी डस्ट इन द एयर, राइट, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स, राइट। सो दिस कैन स्टिक टू आवर बॉडी इजीली। वी ऑल नो हमें वायरल फीवर होता है, कैसे होता है, बिकॉज एयर कंटेन्स जर्म्स, राइट, जो हमें हमारी बॉडी के ऊपर इजीली स्टिक हो जाता है। दैट इज़ वाई वी वॉश आवर हैंड्स एंड दैट इज़ वाई वी bath daily, right? So that is why we should always have a bath daily, right? That is why, इसीलिए हमें हर रोज़ क्या करना है, हाँ, डेली नहाना है, राइट। We should also wash our hands before eating to clean off the germs. हमें हर रोज़ इसीलिए खाने से पहले और खाने के बाद we should wash our hands, right, to clean off the germs. So what does air contain? Air contain water vapor, gases, dust particles and germs, right. This we have to keep it in your mind. What does air contain? It's water vapor, gases, dust particles and germs, right. So this is our first topic, and now see second topic, water. So we all know water is very important in our life, right. So see, what is very important for life on the earth? See, this is question for you. What is very important for life on the earth? हमारे अर्थ में, अगर अर्थ पे हम जी रहे हैं, हमें जीना है, तो what is so important for our daily routine? So we need air, we need water, right, we need food. So water is so much important for our life, right. All living things need water. हमें वाटर चाहिए ही चाहिए. Without water we cannot live even, right. We use water for various purposes such as drinking, cooking and watering plants. हम अलग अलग हेतु के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, राइट. तो किस किस के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर का? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कुकिंग, फॉर कुकिंग के लिए, एंड वाटरिंग प्लांट्स. सी, वाटर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए हमें वाटर चाहिए. यस, स्मार्ट्स. वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. यस, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. नेक्स्ट, वाटर इज़ यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स. और हमें वाटर किस लिए चाहिए? वी नीड वाटर टू watering plants. Plants are also living things, right? So they also need water. So water is very important for our life, right? And drinking, cooking and watering plants के लिए we used water, right? Now see water cycle. So what is water cycle? This is very important topic in this chapter, and आप सबको ये आगे भी बहुत ही काम आएगा. सो इसका कंसेप्ट समझने में बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेट रखना, अच्छे से समझना और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, राइट. सो नाउ सी, we know that ice, water and water vapor are the three forms of water. We all know, right, that there are three forms of water. We all know ice, water and water vapor.
We all know this? Yes, right? So, what happened to the water when wet clothes dry in the sun? You guys are know. जो कपड़े हैं वो कैसे सूखते हैं? What happens? उसके साथ क्या होता है तो कपड़े सूख जाते हैं? The water present in the wet clothes, right, changes into water vapor due to heat from the sun. सन से जब हीट मिलती है तो जो गीले कपड़े होते हैं उसमें से जो वाटर है वो सूख जाता है, वो जो हीट है वो सोख लेती है वाटर को, राइट. तो द चेंज ऑफ वाटर to water vapor is called evaporation, right? What is this is called evaporation. This is the example of water evaporation, कि कपड़े का सूखना, right? This is the example of evaporation, and the change of water to water vapor is called evaporation. जब water से water vapor में change होता है तो इस process को हम evaporation बोलते हैं, right? Now turn the page number 120. In the same way, the sun heats up the water from rivers, ponds, lakes, seas and plants, right? ऐसे ही जैसे sun क्या करता है, heats up the clothes. जैसे सन क्लोथ्स को हीट्स अप करता है वैसे ही कहाँ से वाटर हीट्स अप करता है, रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स, सीज एंड प्लांट्स, वहाँ से भी सन है वो क्या करता है, वाटर को हीट्स अप करता है, राइट. दिस वाटर इवापोरेट्स इनटू द एयर एज वाटर वेपर. ये जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में, और वो एयर में मिक्स हो जाता है, राइट. व्हेन इट गोज हायर, वो जब एयर ऊपर जाती है, द वाटर वेपर कूल्स डाउन. वाटर वेपर क्या करती है, कूल डाउन हो जाती है टू फॉर्म स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स. और क्या कर ठंडी होती है वाटर वेपर तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट. सो द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वी ऑल नो दैट व्हेन वाटर वेपर changes into water droplets is called condensation. These tiny water droplets mix with dust and other things to form cloud. Cloud कैसे बनते हैं, और ये टाइनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे, एंड डस्ट जो होती है एयर में उससे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं. अब समझ में आया क्लाउड्स कैसे बनते हैं. Clouds mixes by tiny water droplets mix with the dust and other things to form clouds, right. Now see, inside the clouds the tiny water droplets join to form big drops. फिर वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, आप कभी देखना टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके एक दूसरे में मिक्स होते जाते हैं और बड़ा सा क्या हो जाता है, ड्रॉप बन जाता है, राइट. व्हेन वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड बिकम टू हैवी टू रिमेन इन द एयर. जब वाटर ड्रॉप्स है वो क्लाउड में भर जाते हैं और वो क्लाउड है वो बहुत ही हैवी हो जाता है, जो एयर है वो उसे उठा नहीं पाती, तब क्या होता है, दे फॉल डाउन एज रेन. वो तब क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं और हम उसे क्या बोलते हैं, रेन, राइट. इन प्लेसेस that are very cold the water drops freezes into ice and come down as snow. कहीं पे स्नोफॉल होती है, राइट, वी ऑल नो. तो वो स्नोफॉल क्यों होती है, क्योंकि कोल्ड एरिया में जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में, और हम उसे क्या बोलते हैं, स्नो, राइट.
Now see, this rainwater or the snow fills the seas, rivers, ponds and lakes and the cycle continues. फिर क्या करते हैं, जो वाटर गिरी वो किस में जाती है, किसको भरती है, सीज को भरती है, राइट. रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स ये सब भर जाते हैं वाटर यानी एयर आने रेन आने से, राइट. और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है. तो द साइकिल इन्वॉल्विंग द चेंजेस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल. यहाँ क्या हुआ, देखो, जो रिवर, पॉन्ड्स, लेक, सीज, प्लांट्स है ना, ये सब वाटर को कंटेन करते हैं, राइट. तो उसमें से ही सन है वो क्या करता है, सन की जो हीट है उससे क्या होता है, वाटर इवापरेट्स इनटू द एयर एज वाटर वेपर, राइट. ये हुआ फर्स्ट स्टेप. जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें वाटर होते हैं, वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं. और क्या होता है, व्हेन इट गोज़ हायर, जब ऊपर हो जाता है तो क्या होता है, वाटर वेपर कूल डाउन होता है, राइट. जो वाटर वेपर है वो कूल डाउन होके इट टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स टुगेदर एंड मेक clouds, right, and form clouds. So फिर क्या होता है, inside the clouds the tiny water droplets join together and form big drops. और क्लाउड्स में क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे होते हैं, वो मिक्सअप होके बड़े वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं एंड दे फॉर्म बिग ड्रॉप्स. एंड व्हेन वाटर ड्रॉप्स इज इन दी क्लाउड बिकम्स टू हैवी, वो बहुत हैवी हो जाते हैं तो क्या होते हैं, रिमेन्स इन द एयर, यानी जो क्लाउड्स है वो एयर उठा नहीं पाती तो क्या होते हैं, दे फॉल डाउन एज रेन, वो बारिश होके गिर जाते हैं, राइट. इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड, तो वाटर ड्रॉप्स फ्रीजेज इनटू आइस एंड कम डाउन एज स्नो. ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो वाटर ड्रॉप्स जो बड़े होते हैं वो जब नीचे आते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं एंड वी कॉल्ड इट आइस बन जाते हैं एंड वी कॉल्ड इट स्नो, राइट. दिस रेन वाटर ऑफ द स्नो फिल्स अप सीज, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स. सी, ये रेन वाटर है, जो पानी है, रेन होती है जो पानी है उससे क्या भरते हैं, नदियाँ भरती है, सीज भर जाते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, है ना. और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है. फिर वहाँ से वाटर इवापरेट होके फिर से हवा में जाता है, फिर से वहाँ पे क्या होता है, कूल्स डाउन होता है, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, कंडेंसेशन होता है. फिर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्सअप होके, डस्ट के साथ मिक्सअप होके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, राइट. फिर वो क्लाउड्स में जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके बड़े वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं, राइट. और जब एयर है उसे संभाल नहीं पाती वो क्लाउड को, तो क्या होता है, दे फॉल्स डाउन एज रेन, वो रेन बन के गिर जाते हैं एंड वो रेन है उससे क्या फिर से भरता है, रिवर, पॉन्ड, सीज, लेक्स, राइट. और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है. तो व्हाट इज वाटर साइकिल, दिस साइकिल इन्वॉल्विंग द चेंजेस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल. मतलब वाटर वेपर से वाटर, वाटर वेपर से वाटर से फिर से वाटर वेपर, ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है और इसे हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल. सी, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है, ये क्या है, दिस इज water, right, like we call it river, right. So rainwater fills the water bodies. This is water bodies like a pond, river, lake, seas.
दिस इज वाटर बॉडीज, राइट। वाटर बॉडीज से क्या होता है, वाटर गेट्स हीटेड बाय द सन एंड गोज अप एज वाटर वेपर। ये वाटर वेपर बन के ऊपर जाती है, राइट। फिर क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड इन द स्काई विथ डस्ट, राइट। ये क्या करते हैं, एक क्लाउड बनाते हैं, और क्लाउड में क्या होता है, द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स विद द डस्ट एंड दे फॉर्म क्लाउड्स। एंड फिर क्या होता है, when water drops in the cloud became too heavy, right, ये हैवी हो गए हैं तो क्या होगा, क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड बिग ड्रॉपलेट्स, वो जो बिग ड्रॉपलेट्स बन गए हैं वो हैवी हो गए हैं, क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड देम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दिस वाटर ड्रॉप्स कम डाउन एज रेन, और ये क्या बन जाते हैं, रेन बन जाते हैं। और रेन फिर से क्या करते हैं, फिर से वो पॉन्ड में आ जाते हैं। दिस इज वाटर साइकिल, राइट। और जो स्नो गिरता है उससे क्या होता है, ऐसे देखो, जहाँ पे स्नो गिरता है उसके क्या बनते हैं, ऐसे माउंटेन्स बनते हैं, और माउंटेन्स भी पिघल के क्या करते हैं, वाटर बॉडीज बनाते हैं, राइट। सो दिस इज अवर वाटर साइकिल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. I have repeated again and again in this video, so listen it very carefully. In homework you have to write down hard words only, so try to understand this water cycle. It's so easy. What is water cycle? The cycle involving the changes water into water vapor and then water again and then water vapor and then water again, right? We called it water cycle, right? So I hope you guys understand this concept. We'll meet you soon. Stay healthy, take care, bye everyone.